Hello dear students, welcome to Wiki Study channel by GP sir. There is little gap between this channel and me. Now today again I am interacted to this channel. Now today we have a topic from ninth NCRT, The Road Not Taken, a beautiful poem presented by Robert Frost. He is an American poet who writes in a very simple way, but his writing has deep meaning that can change one's life. And here he has presented a natural and an insightful poem for you, dear students. And here he has mentioned a poem of right choices and challenging. You see, these both words have greater meaning indeed. You have choices, but while making these choices, you should have to think properly before you act, otherwise it can ruin your life. तो ये चॉइस जो होते हैं, अगर सोच समझ करके कोई भी निष्कर्ष हम लोग नहीं लिए तो लाइफ बर्बाद हो सकती है। इसलिए भी इस पोएम का महत्व बढ़ जाता है। तो आइए बच्चों, आपको इस मजेदार पोएम की ओर ले जाते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And one be traveler, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in undergrowth. You see, here narrator is moving through a way, and on his way he find diversion, and he find diversion in the forest, from where the road is diverged into two paths. So before taking the right decision or right choices for the right path, he waited, he longed for time, for minutes, for few minutes, and thereafter he make his own decision to take the right path of his interest. And actually what I mean to say here, you see the right choices of your life. Generally, I talk to this young group, kids, you dear students, my lovely kids, my lovely students. You see, if you are not being able to select right path in your life, then you can ruin your life. Your life will be undetermined. But if you can make right decision of right choices, then you can certainly find a great track in your life, and you can find success, and you can be a success person. So here the narrator is narrating your life through this poem. He mean to say that before having choices of, or before taking any decision of your life, you should think very properly and only act after thinking. Now here you see, he longed for a while, and after he took a decision of taking the path that has not been taken by anybody else. And it was very challenging, you see here, because if he had chosen the same path that has already taken by some other people, it might be easier, it might be comfortable, but he cannot make differences. Then he is not encountered, or he would not be listed in a manner or in a way that he is quite different than other people. So every people do the work same, every people do the work same, but why they are remarked? Because these people, they do the work, they do the same work, but whatever they do differently. मतलब क्या होता है कि व्यक्ति काम तो वही करते हैं, लेकिन उसी काम को नए सिरे से
नए तरीके से जो करते हैं उन्हीं को लोग लंबे दिनों तक, लंबे अरसे तक याद करते हैं। वैसे सब कोई तो काम करता है, लेकिन शेक्सपियर को क्यों याद कर रहे हैं लोग? ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो आज हम उनको भूलना चाहें फिर भी नहीं भुला पा रहे हैं। क्यों? Why? That is the reason behind that they are the success person, because they have taken the right decision at the right time. And you too, dear students, this is your time to take a decision of your life. If you select a good, if you find a good choices of your life, and if you find it challenging, and if you can do it differently than others, then you can be a determined person. You can be a determined person. Likewise, then took the other just as fair. Of his own interest already I see it. He took the path of his own interest. मतलब लोग उसी रास्ते से गए थे, लेकिन यहाँ नैरेटर ने अपना रास्ता बदल दिया। उन्होंने दोनों रास्तों को खड़े होकर के बारीकी से देखा। एक रास्ता जो देख रहे हैं कि आगे जाकर के अंत हो जा रहा है, और एक दूसरा रास्ता जो सीधे जा रहा है। तो इन्होंने वह वाला रास्ता चुना जिस रास्ते से कभी कोई गुजरा नहीं था। बड़े बड़े लंबे लंबे घास हो गए थे। नहीं तो जिस रास्ते से लोग गुजरते हैं वहाँ क्या हो जाता है, जितने भी पतझड़ होते हैं वो उनके पैरों से, कदमों से कुचल करके वह साफ हो जाते हैं, और हमें पता चल पाता है कि जंगलों में व्यक्ति इस रास्ते से गए हुए हैं। लेकिन यहाँ नैरेटर ने अपने आप को सबसे अलग एक चैलेंजिंग रास्ता अपनाया है। उन्होंने एक चैलेंजिंग चॉइसेस लिया है कि मतलब मैं सबसे अलग करके सबसे अलग करना चाहूँगा, सबसे अलग रहूँगा, इसलिए उन्होंने अलग रास्ता ही चुना है। और इतना ही नहीं, वो रास्ता इनके लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है अगर आपके चॉइसेस, आपने जो चॉइस किया है, जो सेलेक्ट किया है, अगर वो कहीं पैतरा गलत पड़ गए या आपने गलत रास्ते सेलेक्ट कर लिए, तो भैया वहां से लौट करके आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, और आप अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। मतलब आज के डेट में आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का दौरान है, और इस समय आपके लाइफ में बहुत सारे, पढ़ाई के वक्त बहुत सारी बाधाएं आती हैं, और उन बाधाओं में फंस करके, उन जाल में फंस करके अपने आप को अगर ट्रैक से बदल लिए तो आपका लाइफ हो गया ना डमाडोल। तो अपने लाइफ को गोल करने से, डमाडोल करने से आपको बचना है, तो आप सही सिलेक्शन करिएगा, राइट चॉइसेस लाइएगा, जो ए नैरेटर आपके लाइफ को इस पोएम के थ्रू जोड़ना चाह रहे हैं। नाउ बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड अनवांटेड वियर, मतलब ये कह रहे हैं इन्होंने वह रास्ता अपनाया। ही टुक द पाथ दैट हैज नॉट टेकन बाय अदर पर्सन, इन्होंने वह रास्ता अपनाया जो रास्ता किसी ने, जिस रास्ते से कोई पहले गुजरा नहीं था, वह बिल्कुल भी नया रास्ता था। Though as for that the passing there had warned them really about the same, हो सकता था, एक्सपीरियंस क्या है, इनके लिए डिसीजन लेना सही भी हो सकता था या गलत भी हो सकता था, लेकिन ये अपने आप को साबित करना चाहते थे। और इनका ये भी दावा था, मैं जो डिसीजन लिया हूं मुझे पछताना नहीं पड़ेगा। बिकॉज इफ यू आर टेकिंग द डिसीजन देन यू शुड वर्क ऑन योर डिसीजन। अगर आप कोई निर्णय ले लिए तो आप अपने डिटर्मिनेशन के लिए, उस लक्ष्य के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाकर के आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपको जो चॉइसेस लिए हैं उसको साबित करना है, तभी आप डिटर्मिनेंट पीपल बनोगे, नहीं तो आपको कौन पहचानेगा। वैसे तो सब लोग काम करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उसी काम को अलग ढंग से करता है उसी को लंबे अर्थ तक लोग पहचानते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन द लीव्स, नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक। सुबह के टाइम में दिखने में दोनों रास्ते एक जैसे ही दिख रहे थे, क्योंकि पतझड़ तो होता है, शाम के वक्त पतझड़ हुआ था, दोनों रास्ते एक जैसे दिख रहे थे, फिर भी दोनों में कुछ अंतर था।
ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे एट नोइंग हाउ वेल इट्स ऑन इट्स टू वे। मतलब इनको कोई वह फिक्र नहीं थी कि ये रास्ते मुझे क्या कहाँ ले जाएंगे, क्या ये सबके लिए गलत साबित होगा या मैं इस रास्ते से जाकर फंस जाऊंगा, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इन्होंने उस चीज का कभी परवाह नहीं किया। ही नेवर माइंड इट एंड ही कीप ऑन क्रोलिंग, ही कीप ऑन गोइंग, ही कीप्स ऑन गोइंग एंड he does not lift the track. He moved on, and that's why he want to make him a determined person. I doubted if I should ever come back. इनको पता था कि एक बार इस रास्ते से चल गए तो मुझे पता नहीं कि फिर मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं, क्योंकि हो सकता है रास्ता मुझे कहीं ले जाकर के मैं इस रास्ते पर जाकर के खुद को खो दूं। लेकिन उस बात का इन्हें परवाह नहीं था। इन्हें बस यह था कि जिस रास्ते पे मुझे जाना है तो बस जाना है, और जो लक्ष्य, जो टारगेट, जो लक्ष्य मैंने लिया है, यही रास्ता मेरे लिए सही है और यही रास्ते को मैं सही साबित करके दिखाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई। एक दिन ऐसे फक्र के साथ सर ऊंचा करके मैं सबको बताऊंगा कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। मैंने राइट चॉइसेस ली है। जो मैंने डिसीजन लिया है ये मेरा डिसीजन कभी गलत नहीं था, ना ही मैं गलत हूँ। क्योंकि अगर मैं सबसे अलग करके दिखाऊंगा और मैं सक्सेस बन जाऊं तो मेरे पथ पे, मेरे मार्ग पे सब कोई मार्गदर्शित होकर के सब कोई चलने लगेंगे और मेरा मार्ग स्मरणीय रहेगा, कभी भूलने वाला नहीं रहेगा। सब कोई मेरे ही फीचर्स को फॉलो करेंगे। देन आई शुड बी अ ग्रेट पर्सन एंड डिटरमिनेंट पर्सन। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, दिनों दिनों तक, लंबे अरसों तक, आने वाले युगों युगों तक हमको लोग याद करते रहेंगे, क्योंकि जो मैंने डिसीजन लिया है उस पर मुझे फक्र है। मैंने कभी गलत डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि मैंने उस पर वर्कआउट करके, काम करके मैंने सक्सेस को हासिल किया। दैट्स व्हाई एवरीबडी विल फाइंड मी एंड फाइंड माय वे। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। यहां बताते हैं दो रास्ते जो जंगलों में जा करके ऐसे बट जाते हैं। अब वहां से इनको चॉइसेस है, खड़े होकर के कुछ देर वहां इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि मैं क्या करूं। और बहुत सोचने के बाद इन्होंने दो रास्तों में से ऐसा रास्ता चूज किया जो चैलेंजिंग भरा था, क्योंकि उस रास्ते से कभी कोई व्यक्ति गया नहीं था। बताते हैं कि मैंने सबसे अलग वाला रास्ता सेलेक्ट किया। तो आप भी पढ़ते तो सब बच्चे हैं, लेकिन पढ़ते किताब ही हैं और पढ़ते सारे बच्चे हैं, और जो भी लिखा जाता है उसी चीज को पढ़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक क्लास में कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है और कोई फेल हो जाता है। तो पढ़ाई हुआ कैसा कि वो फेल हो गया? मतलब पढ़ाई हो नहीं पाया ना, वो अपने आप को डेडिकेट नहीं कर पाया। तो इन्होंने यह साबित किया कि उस काम को करिए, लेकिन अलग ढंग से करिए, अलग तरीके से करिए ऐसे उस काम को कि लोग याद रखें कि आपने उस काम को कैसे अंजाम दिया है। I took the one less traveled by and that has made all the difference। और इन्होंने बताया मैंने उस रास्ते को अपनाया जिसे कोई नहीं अपनाया था, और उसी रास्ते पर जाकर के मैंने सफलता को हासिल किया। जिसे कोई सिलेक्ट नहीं करता था उस पे मैंने करके दिखाया। एंड दैट्स व्हाई आई एम अ सक्सेस पर्सन एंड यू टू डियर be dedicated, be concentrated, you can find success once. Thank you for watching my video. Thank you very much. Be connected with DK Study channel. Thank you.